I'll be moving on to call upon our panelist on stage. और please जोरदार तालियों के साथ welcome कीजिए while I call them on stage. Our first guest is Dr. Sanjay Jain, Safe and Secure Online Marketing Private Limited. Ladies and gentlemen, he is someone who has redefined secure digital landscapes in our industry, representing safe and secure online marketing. And that's Dr. Sanjay Jain for you. Can we please have a louder round of applause, everyone? Yeah, please take your seat, sir. Thank you, and a very warm welcome here. And now, ladies and gentlemen, it's time to call upon our next panelist. And for that, I'd be calling upon Mr. D.H. Kadam, MI Lifestyle Marketing Global Private Limited. Well, he is a phenomenal leader, driving massive growth and massive compliance with MI Lifestyle Marketing Global. And can we please have a big round of applause, ladies and gentlemen, for Mr. D.H. Kadam. A very warm welcome, sir. A very warm welcome. It's truly an honor to have you here. And ladies and gentlemen, our next panelist I'd like to call upon is Mr. Rajiv Gupta ji, Vice President FDSA. Can we please have a big round of applause because he brings the authoritative voice of regulatory excellence and the legal backbone of our industry. That's Mr. Rajiv Gupta ji. I think हम थोड़ी और तालियां बजा सकते हैं for our panelists because they are someone who are going to impart their experience with you. And now, ladies and gentlemen, it's time to call upon our next panelist, Mr. Anton Selvin, CEO Unibiz Multi-Trade Private Limited. Can we please hear it for him? A brilliant corporate strategist who knows exactly how to balance aggressive growth with rock-solid ethics. A very warm welcome, sir. Please have a seat. And now, ladies and gentlemen, our last panelist, I'd like to call upon Mr. Vipul Makwana ji, Dayjoy Marketing Private Limited. Can we please have a big round of applause for him? He represents a legacy, a brand that has earned the trust of millions of households across the nation. Please welcome the dazzler, Mr. Vipul Makwana ji. A very warm welcome, sir. And now, ladies and gentlemen, I'd like to call upon someone without whom this panel discussion would not go through. Please put your hands together for Mr. Surendra Watts. Chat with Surendra Watts. He has been with us relentlessly from past 4 years. Can we please have a big round of applause? A very warm welcome, sir. And now it's over to you. Good morning, everyone. डायरेक्ट सेलिंग वाली एनर्जी दिखा सकते हैं हम लोग, जिसके लिए हम जाने जाते हैं. गुड मॉर्निंग वंस अगेन. सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले हम नेटवर्क एक्सप्रेस टीम को आभार प्रकट करें और आप किससे कितना प्यार करते हैं, किसका कितना सम्मान करते हैं, वो बताना बहुत जरूरी है. और आप तालियों के माध्यम से बता सकते हैं. जो टीम नेटवर्क एक्सप्रेस है उसके आप कितने आभारी हैं. उन्होंने हमें मौका दिया, सबको न केवल मात्र मिलने का, अपितु डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यूनाइट करने का वो काम करते हैं. जो लोग मेहनत करते हैं उनको रिकग्निशन मिलता है ताकि और ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ में ज़्यादा काम करें. और साथ में हमें पैनल डिस्कशन के माध्यम से वो विजडम भी उपलब्ध करवाते हैं. 20-25 साल के एक्सपीरियंस लोग अपना अनुभव हमारे साथ में शेयर करते हैं. तो ये आज के इस पहले पैनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं. एक बहुत लर्नर्ड पैनल हमारे बीच में है. इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैडम ने आपके बीच में दिया है. और मैं अगर एवरेज मान लूँ तो 25 साल का एक्सपीरियंस हर व्यक्ति के पास में है और 6 लोग यहाँ पे हैं. तो आप मान के चलिए 150 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का तजर्बा यहाँ पे स्टेज पे आपको मिलने वाला अगले कुछ मिनटों में. आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? उत्साहित हैं आप उसके लिए? दैट्स ग्रेट. और अगर आपकी एनर्जी बरकरार रही तो आज का ये एपिसोड हम लोग कोशिश करेंगे कि चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड में भी फीचर किया जाए.
ये बात मैंने आपको इसलिए बोली है ताकि आपकी तालियां भी बजती रहें, जब कैमरा आपकी तरफ आए तो आपके चेहरे भी थोड़े से उस पे प्रसन्नता रहे, ये लगे कि हाँ आप आने वाले समय में अपनी कंपनी के बहुत बड़े अचीवर बनने वाले हैं और देश को और टीम को सर्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करें, चलिए उसी अंदाज में शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डिस्कशन का सब्जेक्ट है बिल्डिंग ए रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एथिक्स, कॉम्प्लायंस एंड लीडरशिप। 3 चीजों पे हम लोग विशेष रूप से बातचीत करेंगे। और रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें इसलिए बिल्ड करनी है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज नोन फॉर सेकंड जनरेशन। यहां पे जो हम काम करते हैं उस काम का लाभ हमारी अगली पीढ़ी को मिलता है और उसके बाद अगली पीढ़ी को मिलता है। चूंकि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग हमारे देश में लगभग 30 सालों से काम कर रहा है और जो कंपनियां 25-30 साल पहले शुरू हुई थी, आज उनमें दूसरी जनरेशन ने काम करना स्टार्ट कर दिया है और कई जगह तो तीसरी जनरेशन भी देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम उद्योग को एक जिम्मेवारी के साथ में बिल्ड करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स जब इस कार्यभार को संभालें उस समय उनको ये लगे कि हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया है इंडस्ट्री को यहां पे ले जाने के लिए और वो और ज्यादा जोश के साथ में इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए काम करें। तो आइए इस पे हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। एथिक्स, कॉम्प्लायंस एंड लीडरशिप। सबसे पहले हम एथिक्स की बात करते हैं और हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एथिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है और अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हमारे देश में, जो अगर आप 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बातचीत करेंगे, लेकिन उसमें जब एथिकल बिजनेस की बात करेंगे या बिजनेस घराने की बात करेंगे कि इंडिया में सबसे एथिकल कौन सा ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम आपके ज़हन में जरूर आएगा। क्या नाम आएगा? अगर हम बिजनेस की बात करें, सबसे एथिकल इंडिया में किस ग्रुप को माना जाता है? टाटास को माना जाता है। यस और नो? हम टाटास के एम्प्लॉइज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, और टाटा देश की सबसे बड़ी कंपनी भी नहीं है, उसके बावजूद भी टाटा ने उस प्रकार के एथिक्स का पालन किया है, उस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, इसलिए उसकी एक अलग पहचान है, एक अलग इज्जत है, एक अलग सम्मान है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्री है हमारे देश में काम कर रही है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भी एक वैसी इमेज होनी चाहिए कि यार एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहीं हो तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आती है। तो आइए इसलिए एथिक्स के बारे में बातचीत करते हैं और हम शुरुआत करते हैं राजीव गुप्ता जी से ही शुरुआत करते हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है गुप्ता सर का, और गुप्ता सर का रोल उस प्रकार का रहता है कि जैसे एक मूवी बनती है ना, तो उसमें हीरो को सब जानते हैं, हीरोइन को सब जानते हैं, जो कॉमेडियन रहता है उसमें साइड हीरो को भी सब जानते हैं, लेकिन डायरेक्टर को बहुत कम लोग जानते हैं। तो गुप्ता जी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की जो फिल्म आज आप देख रहे हैं उसके डायरेक्टर रहे हैं। पर्दे के पीछे उन्होंने बहुत सारा काम किया और उसकी कुछ झलकियां आज हमने यहाँ पे देखी भी। और अभी तो मेरी थोड़ी अलग तरह की व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन एक समय में राजीव गुप्ता जी की और मेरी जय बीरू वाली जोड़ी रहती थी। हम लोग साथ साथ में रहते थे। कितनी बार हम लोग मिनिस्ट्री में साथ में गए, शायद सैकड़ों बार हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनने से पहले कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री में गए होंगे, जहां हमने ऑफिसर्स को ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कुछ ना कुछ रूल, रेगुलेशन, कानून बनने चाहिए। लेकिन गुप्ता जी हमेशा पर्दे के पीछे रहे। उसके बाद में एफडीएसए के वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका में बहुत काम हुए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज वो पर्दे के सामने हैं। तो मैं चाहूंगा एक बहुत जोरदार तालियां आभार वाली राजीव गुप्ता जी वाइस प्रेसिडेंट एफडीएसए के लिए हम लोग बजाएं। गुप्ता सर, आपने बड़ी नजदीक से चीजों को देखा है, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा नैतिक रुकावट, एथिकल चैलेंज क्या है हमारे बीच में? हम नहीं सुधरे इसलिए। सर, जो कुछ होता है ना हमारे अंदर होता है, व्हाट वी बिलीव इन आवरसेल्फ।
हम अगर दूसरे को रोक नहीं पा रहे हैं तो हमें अभी अपने आप को और मजबूत करना है। नैतिक और अनैतिक, इन दो में स्थिति ये है कि आप रावण को भी देख लीजिए, राम को भी देख लीजिए। अनैतिक को ना चाहते हुए भी हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि उसको बोलने वाले 100 में से 90 लोग हैं। वो जानते नहीं क्या ठीक है क्या गलत है, उन्होंने जो सुना आगे कर दिया। टाटा का आपने नाम लिया, आप समझिए एयर इंडिया टाटा को मिली या टाटा ने लिया, उसका क्या रीजन रहा? इट्स नॉट ओनली द फाइनेंशियल, ये धीरू भाई अंबानी भी ले सकते थे, लेकिन वो टाटा ग्रुप की एक, जमशेद जी टाटा उस टाइम की एक कंपनी थी जिससे उसके साथ सेंटीमेंट जोड़ा था, इमोशन जोड़ा था। इथिक्स के लिए इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं। आप अपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से इथिकली अगर मिल रहे हैं और उसको इमोशनल है, उसको तरक्की दिलाना चाहते हैं, तो उसको गलत बात कभी नहीं सिखाएंगे, आप गुरु हैं। तो इथिक्स हमें बनाने के लिए अपने आप को मानवीय दृष्टिकोण में रखना होगा। पैसे को जिसने फोकस किया वो इथिकल से डेविएट हो सकता है। ये मेरा, दैट्स ग्रेट। तो थोड़ा सा जो हम लोग पैसे की बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, दिखावे की बातचीत करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो आपने एक चैलेंज भी बता दिया और उसका साथ में सॉल्यूशन भी बताया। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। मकवाना जी हमारे बीच में हैं, विपुल मकवाना जी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, अहमदाबाद से हैं। मकवाना जी, आप चूंकि एज ए डायरेक्ट सेलर काम करते हैं, 26 साल से ज्यादा का आपका तजर्बा है, आपको क्या लगता है एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर के रूप में क्या एथिकल चैलेंज आपको ग्राउंड पे दिख रहा है एक, और उसका क्या सॉल्यूशन आपको लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुरेंद्रवत जी और गुप्ता जी को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। मैंने सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में उनका योगदान अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा योगदान है वो आज पता चला। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए सर, जो 26 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हूँ सर, मैंने जो सीखा है, जो जाना इस इंडस्ट्रीज को, कि इस इंडस्ट्रीज को बदनाम भी लीडर ही करते हैं और आबाद भी लीडर ही करते हैं। लीडर का जो एक काम करने का जो तरीका होता है अनएथिकली या एथिकली, उससे ही इंडस्ट्रीज का नाम बनता है। मैंने देखा सर कई ऐसे लीडर्स हैं जो मतलब एक शॉर्ट टर्म कुछ ध्यान में रखते हुए आते हैं, मतलब उसको रातों रात अमीर बन जाना है, इसलिए गलत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे अनएथिकल काम करते रहते हैं। या कई ऐसे एमडीज भी आते हैं कंपनी, वो जब कंपनी ओपन करते हैं उस समय पे पता होता है कि अभी कंपनी बंद कब करनी है, उसको सिर्फ पैसा बनाने में इंटरेस्ट रहता है, जैसे गुप्ता जी ने भी कहा। तो सिर्फ पैसा तो ठीक है, सब कमाने के लिए आए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर एथिक्स के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, लोगों के कैरियर के ऊपर हम फोकस करेंगे, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर टीम में आते हैं उसका कैरियर कैसे बने, लोगों की हेल्थ कैसे अच्छी रहे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत कुछ इंडस्ट्रीज को लेके बहुत कुछ कर सकते हैं। और खास करके कई लोग जो एक गलत दावे करते हैं कि मतलब जो चेक नहीं है उसे कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, या जो प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं तब उसमें कुछ गलत दावे करते हैं कि ये प्रोडक्ट से आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे गलत दावे नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर हम करेंगे इस तरह से तो क्या होता है, मतलब लीडर या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक मजाक बन जाती है। तो मैं आप सभी लीडर्स को कहना चाहता हूं कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लेके सोसाइटी में एक अच्छा नाम बनाने की। बाकी जो गवर्नमेंट ने जो करना था कर दिया है, अब इस इंडस्ट्रीज को कैसे बड़ा नाम करना है वो हम सबके हाथ में है। तो हम अगर एथिकली करेंगे, और ख़ास करके मैंने ये भी सर देखा है कि ज़्यादातर लोग कंपनियां भी बदलते रहते हैं, आए दिन नई कंपनी लालच में जाते हैं। तो ऐसा एक्चुअल में कंपनियां बदलने से भी कुछ नहीं होता है, अगर सही कंपनी ढूंढ के अगर एथिकली काम करेंगे तो कहीं भी आप बड़े बन सकते हैं सर। थैंक यू। कई सारे कारण विपुल जी ने हमें बताए, और अगर आप एक देखिए सही कंपनी में हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो बिल्कुल आप जनरेशन्स में अगर जाना चाहते हैं तो उसमें आप टिके रहिए, अच्छे रिलेशन बिल्डअप कीजिए मैनेजमेंट के साथ, टीम के साथ में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे आप अच्छी कंपनी में नहीं हैं जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का पालन नहीं कर रही हैं, अगर आपको एहसास हो गया है उस चीज़ का, तो फिर नई कंपनी अच्छे से चुनिए, और ये
ये सोच के चुनिए कि ये मेरी जिंदगी की लास्ट कंपनी होने वाली है, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विपुल मुखवाना जी। हमारे बीच में एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं एंटोन सेल्विन। बहुत फोकस रहते हैं काम को लेके, एफडीएसए के मंच पे हम अक्सर मिलते रहते हैं। सो एंटन सर, एज ए कंपनी ओनर, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा कंपनी मैनेजमेंट में कौन सा ऐसा लगता है कि वो एथिकल वाला एक पॉइंट है जिस पे काम करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। सो फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, सो एथिक्स इज समथिंग हमारा रूट्स में होना चाहिए। सो इफ यू से फॉर एग्जाम्पल मिसलीडिंग इनकम, हम बढ़ा चढ़ा कर इनकम बताना, एंड देन देयर इज समथिंग एग्जैजरेटिंग ऑफ प्रोडक्ट क्लेम्स, इससे इतना सारा बेनिफिट्स को हमसे ज्यादा हमारा प्रोडक्ट्स बात करना चाहिए। सो दिस और थर्ड अगेन अनएथिकल वेज, हमारा फोकस इज अगेन रिक्रूटमेंट बेस ही रहता है, कैसा हम जोड़े उसी पॉइंट को ही हम फोकस करते हैं। बट इट हैज टू बी अ कंज्यूमर सेटिस्फैक्टरी पॉइंट कि मैं जाकर उसको क्या, उसका सेटिस्फाइंग वे में क्या मैं कर सकता हूं। So when this comes with transparency and honesty, no doubt कि trust takes years to build. Trust takes years to build, but you can lose in a minute if we follow unethical way. So transparency, honesty, and at the same time, we need to have customer satisfaction to be the priority. That's great. Thank you. Thank you so much. एंटन सर की एक खास बात है कि वो गागर में सागर भर देते हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते हैं। दैट्स ग्रेट। एक अच्छे वक्ता की वही निशानी होती है। हमारे बीच में एक बहुत बड़ा नाम DH कदम जी हैं। बहुत पुराना एक्सपीरियंस, 25 साल से ज़्यादा, मतलब 1/4 सेंचुरी उनको हो गई है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में, और बहुत गहराई से बहुत अच्छी टीम बिल्ड की है पूरे देश में। कदम सर, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी एक चीज कौन सी है जो आपको लगता है आपको परेशान करती है एज ए लीडर कि यार ये बड़ा गलत हो रहा है इंडस्ट्री में, इसको रोकना चाहिए और ऐसे रोका जा सकता है? सर, इंडस्ट्री के अंदर मिस सेलिंग, देन शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन जो लीडर लोगों को दिया जा रहा है, या बहुत सारे मैनेजमेंट की तरफ से भी एक शॉर्ट विजन से सिर्फ बिजनेस को बढ़ाना है, टारगेट से अचीव करने हैं, नॉट थिंकिंग फॉर द पीपल कि भाई लोग किसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म कैसे चलेंगे। बेसिकली एक शॉर्ट टर्म की तरफ जो लोग ज़्यादा जा रहे हैं, और जो आजकल जो नए लोग आ रहे हैं उनका शॉर्ट टर्म बिजनेस करने का फोकस है, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट एज ए करियर। मैं मेरे बारे में बोलना चाहूँगा, आई एम विद दिस मैनेजमेंट फ्रॉम द डे वन, और जब तक रहोगे यही मैनेजमेंट के साथ रहोगा। तो जो दैट्स ग्रेट। एक तालियां बजनी चाहिए जोरदार कदम सर के लिए। और ये एक देखिए, जब आप लोगों को बोलते हैं ना कि दिस कंपनी इज माय फर्स्ट एंड दिस कंपनी इज माय लास्ट वन, तो एक फिर कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर लोग आपके साथ में जुड़ते हैं और उनका विजन बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाता है। और कदम सर ने अपनी कामयाबी का राज भी बता दिया। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का एक बहुत बड़ा नाम जो अपने आप में एक ब्रांड है, संजय जैन जी हमारे बीच में हैं। बहुत बड़ा तजर्बा है, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपके पास में हैं, बहुत बड़ी टीम आपने बिल्ड की है पूरे देश में। संजय सर, इतनी सारी उपलब्धियां आपके पास हैं, उसके बावजूद कुछ न कुछ तो दर्द होगा अंदर में जो लगता है कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं पिछले करीब 25 सालों से एक ही कंपनी में काम करते करते एक टीम को बिल्ड कर पाया हूँ। मेरा यहाँ बैठे हुए और बल्कि यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है, एक ही मैसेज है कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप डेवलप करें जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है, और यही एक कमी है जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है। लोग आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, लॉन्ग टर्म कुछ उनको दिखाई देता नहीं है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि देखिए, अभी यदि रूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, आप लोगों ने मेहनत करके यहाँ तक सारी चीज़ें करवा दी है, तो रूल्स की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम कंपनी की बात करें तो कंपनी को एथिकली काम करना पड़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट देने पड़ेंगे,
और कंपनी अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी चीज़ें वो कर रही है, कंपनी की तरफ से भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा फेस मार्केट में यदि कहीं पर हैं, चेहरे जो दिखाई देते हैं, हम और आप हैं जो जाते हैं लोगों से बात करते हैं, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। यदि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाते रहेंगे, करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जब थोड़ा सा कुछ लालच आता है, थोड़ी सी कुछ फास्ट ग्रोथ के चक्कर में हम क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म सारी बातों को भूल जाते हैं, और फिर जो लोग हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं वही कहीं ना कहीं हमारे साथ में अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, जो लोग हमारे साथ में आ रहे हैं उनको कैसे साथ में लेके चलें, उनके डेवलपमेंट पे काम करें। क्योंकि देखिए, मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से लोग अपने सपनों को लेकर के आते हैं, उन्हें नहीं पता इस बिजनेस को करना कैसे है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा वो देखते हैं वैसा वो सब कुछ डुप्लीकेट होता है। और आप ये एक बात और समझ लें कि जब हम इस बिजनेस में कुछ लोगों को कांटेक्ट करते हैं तो उनमें से मान लीजिए 10 लोगों को हमने कांटेक्ट किया, शो द प्लान किया, बिजनेस के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस किया, तो 2 या 3 लोग आते हैं, बाकी 7 लोग ऐसे ही चले जाते हैं। तो वो 7 लोग कहीं ना कहीं हमारे बारे में निगेटिव बातें ही करने वाले हैं यदि हमने सही ढंग से उनको इम्प्रेस नहीं किया, सही ढंग से हमने अपने प्रेजेंटेशंस को नहीं रखा। तो सबसे ज़्यादा यदि कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप की ज़रूरत पड़ रही है, और यदि वो हम डेवलप कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म ग्रोथ को ना देख के, हम पूरी लाइफ को, जनरेशन्स का बिजनेस है इसको ध्यान में रख के यदि हम काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को, इस पूरी इंडस्ट्री को लीड करके आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग अपने तेजी के लिए जाना जाता है, मोमेंटम के लिए जाना जाता है। स्पीड के साथ कंपनियां भी काम करना पसंद करती हैं, लीडर भी काम करते हैं, और जहां पे स्पीड आती है तो वहां थोड़े एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वहां पे बहुत बार एथिक्स से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कंपनी भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं। उनको मालूम है कि यार ये गलत है ऐसे किसी दूसरी कंपनी के व्यक्ति को लेके आना या उसको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देना, लेकिन बहुत बार वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लीडर भी कई बार जोड़ तोड़ करने की कोशिश करता है। तो इस बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाए कि ग्रोथ भी मेंटेन रहे और जो एक रेपुटेशन है, जो एक इमेज है, वो इमेज भी लॉन्ग टर्म में डेंट नहीं पड़े, उन दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए? गुप्ता सर, आपसे शुरुआत करते हैं। एक छोटा छोटा संक्षेप उत्तर। प्रश्न मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूं कि ग्रोथ भी हो हमारी तेजी के साथ में और फिर रेपो भी बनी रहे, बैलेंस कैसे बना के रखें? इसमें थोड़ा सा इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। एक छत, आप आरसीसी का आप ढाल रहे हो, आप सीमेंट रोली डाल रहे हो, फटाफट कर एयर पॉकेट्स अंदर रह जाते हो, कमजोर रह जाती है। वाइब्रेटर लगाइए, धीरे धीरे उसको डालिए, चलता है। कंपनी का यहाँ जिम्मेवारी ये है कि उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पहले से समझ में आनी चाहिए। उसको कुछ जगह पर वो अगर कमजोर पड़ रहा है तो कंपनी को सपोर्ट एक्सटेंड करनी चाहिए, वरना उसको जहां से सपोर्ट मिलेगी वो वहां चला जाएगा। तो इसमें लीडर को हमें अपने पास रिटेन करना है, ये जिम्मेवारी हमारी है। कंपनी को इस तरीके से, अगर कंपनी, किसी कंपनी में अगर आज 20 साल 25 साल से ये रुके हुए हैं, हमारे कुछ लीडर हम साथी बैठे हुए हैं, तो ये अपने दम पर तो है ही हैं, कंपनी की भी इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने जाहिर है पूरी की है। इट इज टू वे। तो कंपनी को इस तरह से अगर देख लें, बैलेंसिंग कर ले, क्वालिटी प्रोडक्ट तो है ही है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी ही सस्टेन करती है। लीडर की रिक्वायरमेंट समझना कंपनी का काम है सर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। गुप्ता सर ने बोला, मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूं अपनी तरफ से कि हमें ग्रोथ से पहले रेपुटेशन देखनी चाहिए। मेरी ग्रोथ हो उससे पहले मुझे ये चेक करना चाहिए कि इससे मेरी रेपुटेशन पे, लॉन्ग टर्म इमेज पे तो कोई डेंट नहीं आएगा। अगर डेंट नहीं आएगा तो फिर वैसी ग्रोथ नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक प्रिंसिपल को अगर हम लोग लागू कर लें अपनी जिंदगी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारी गलतियों से हम लोग बच सकते हैं। एथिक्स का सीधा संबंध है सर ट्रस्ट से, विश्वास से। और चूंकि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में पहले हमारे देश में कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, 2016 में गाइडलाइंस आए, उससे पहले तो कहीं कुछ था ही नहीं। इसलिए
उस अभाव का फायदा उठाते हुए बहुत सारी मनी सर्कुलेशन की कंपनियां आई, चली गई, और जब कोई कंपनी जाती है तो लोगों को लगता है कि ये सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो इस प्रकार से टीम और नेटवर्क बनाती हैं, सारी एक जैसी हैं। तो जो विश्वास की कहीं ना कहीं कमी है, उस विश्वास की कमी को कैसे हम लोग बनाए रख सकते हैं, कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं? विपुल जी क्या कहेंगे? जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को लेके, उसको पूरा कैसे कर सकते हैं? बहुत क्विकली एक दो पॉइंट। सर एक्चुअल में जो मैंने इस बिज़नेस को समझा है कि सेल्फ ब्रांडिंग का बिजनेस है। आपकी अगर ब्रांड एक एज ए लीडर क्रिएट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में, तो काफ़ी सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ को जानते नहीं है वो आपको देख के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ ब्रांडिंग, अपने खुद पे काम करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग पैसों के पीछे भागते हैं, पैसा कमाने के लिए उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, खुद पे काम नहीं करते। सर मुझे लग रहा है कि अगर खुद पे हम काम करेंगे तो पैसा तो अपने आप पीछे आएगा और इंडस्ट्रीज का भी नाम एक अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लीडर इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। सर दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंटन सर, जो ट्रस्ट की कमी है कहीं ना कहीं पब्लिक में डायरेक्ट सेलिंग को लेके, उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं? सो ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोर ट्रांसपेरेंट, द मोर कंसिस्टेंट एंड द मोर अकाउंटेबल है कंपनी, सो ट्रस्ट इज समहाउ बिल्ट वेरी सून। बट देन एक कस्टमर को ट्रस्ट होना है, इफ अ कस्टमर हैज टू ट्रस्ट, it is the product which gives them the trust. Using a product, the result gives trust to the customer. At the same time, for the distributor को trust होना है, तो it is the commitments from the company. Company ने commitment कर दिया है और fulfill हुआ है, तो distributor would no doubt आंख बंद करके भरोसा कर देगा. So it is the product, at the same time the commitments. Followed with this, हमारे actions should contribute matching your words. हम जो बोलते हैं वो हमारे actions में भी होना चाहिए. So a leader should be led. I mean, it has to be his example. He has to be the example from which a trust for the leader and trust for the company will be built. Thank you. Wonderful. तीनों पार्ट पे क्या क्या काम करना चाहिए लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी मैनेजमेंट में। वंडरफुल एंटन सर। देखिए, एथिक्स तो सही है, अगर एथिक्स हम फॉलो कर भी लेते हैं, लेकिन एथिक्स के साथ साथ में कंप्लायंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। आपका ईमानदार होना, आपकी नीयत अच्छी होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के जो नियम कानून हैं उसका पालन करना भी जरूरी है। अच्छी बात यह है, हमारे पास साथ में अभी 2021 में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आ गए थे। रूल्स हमारे पास में हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि इनके तहत आप हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाइए, यू आर लीगल, आप खुल के काम कीजिए। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए हैं, इसके बारे में अफसोस इस बात का है कि बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में आज भी नहीं जानते हैं। बस ये जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आ गए। डायरेक्ट सेलिंग रूल क्या हैं, वो कितने पेज का डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डायरेक्ट सेलर की है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये थोड़ा कंप्लायंस के बारे में बातचीत करते हैं। और कदम सर हमारे बीच में हैं। जो हमारे रूल्स आए सर, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स, इन रूल्स से हमारी इंडस्ट्री का भविष्य कैसा देखते हैं आप रूल जाने के बाद में? सर, थैंक्स टू यू देन सर ऑल्सो एंड फॉर एवरीवन हु हैव टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। क्योंकि जब मैंने चालू किया था तो मालूम नहीं था कि इंडस्ट्री चलेगी नहीं चलेगी। व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो आज वो जमाना और आज के ज़माने में ये फ़र्क है कि 101% ये हमारा जनरेशन बिजनेस सेट हो चुका है। यस। एंड मेनली एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, अच्छे अच्छे लोग बिजनेस में आने का एक प्लस पॉइंट हो सकता है ये रूल्स की वजह से। तो बेसिकली ऑल द मैनेजमेंट, ऑल द लीडर्स हैव टू टेक केयर कि हमारे साथ तब लोग आएंगे जब हम लोग इथिकल रहेंगे, हमारा एक ब्रांड बनेगा और लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे। मेन होना चाहिए, वी शुड ट्रेन आवर पीपल। कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सुना कि है करके, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर द रूल्स एंड फॉलो द रूल्स बाय द मैनेजमेंट। उसके लिए हमें भी थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा। दिस इज द मेन। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। आपने संजय जी हर दौर देखा है, वो दौर भी देखा है जब
डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग करते हुए डर लगता था कि पता नहीं कौन कब क्या हो जाए, क्योंकि कई सारे फेजेस से ये इंडस्ट्री गुजरी और कोई भी इंडस्ट्री गुजरती है। आज डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आपके सामने हैं, क्या भविष्य देखते हैं? भविष्य तो सर बहुत शानदार है। बहुत बढ़िया तरीके से कोई भी व्यक्ति इसमें अपना करियर बना सकता है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जहाँ पर MBA इन डायरेक्ट सेलिंग भी कोर्सेज जो है लोग लॉन्च कर रहे हैं। अभी हमारी कंपनी ने भी एक टाई अप किया है SSU श्री श्री यूनिवर्सिटी के साथ में, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स लेकर के आ रहे हैं। और हम जितने भी टॉप लीडर्स हैं उन्होंने सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी दी कि डायमंड और उसके ऊपर के जितने भी लीडर्स हैं उनको इसमें सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर के ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई। और अभी अलग अलग बैचेस में सारी ट्रेनिंग चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने अपना काम किया है और उससे इमेज तो पूरी तरीके से चेंज हुई है। इस पूरे बिजनेस की पूरी तरीके से इमेज चेंज हो गई है, लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ा है और जो लोग इसमें आकर के काम कर रहे हैं वो सेफ भी फील करते हैं। क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया था करीब करीब आप समझिए 2000 के आसपास में, उस समय तो माहौल ही बिल्कुल बड़ा अजब गजब था। हमें डर लगता था काम करने में, क्या होगा, कैसे होगा, कितने दिन चलेगा। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। कंपनियों को कंट्रोल कर रही है ये गाइडलाइन और जो जितने भी एक्ट हैं, और प्रोडक्ट्स जो है आप देख रहे हैं कि सभी कंपनियों को अच्छे लेके आना, यदि रिपीट तभी हो सकता है। तो एक तरीके से बहुत ट्रस्टवर्दी माहौल है और इस माहौल में कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छी लीगेसी डेवलप कर सकता है। मैं फिर यही कहूँगा कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा यदि ध्यान देना है तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी टीम बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना है, अपनी लीडरशिप के ऊपर ध्यान देना है। यदि इन चीज़ों को सही कर लिया तो हमारा फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, बहुत सिक्योर्ड है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। गुप्ता सर, एक बार फिर आपका बहुत आभार। ये जो इमारत का एक आकार दिखने लगा है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का, तो उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कुछ साथियों ने आज यहाँ देखा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, लेकिन मैं तो उसका डे वन से गवाह रहा हूँ। कोई आदमी कैसे अपने स्वयं के हितों से ऊपर उठ के उद्योग के हितों के लिए काम कर सकता है, गुप्ता सर उसका एक बड़ा उदाहरण है। रूल्स तो आ गए सर, लेकिन बहुत सारी कंपनियां आज भी रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं, लीडर्स को रूल्स की जानकारी नहीं है। कितने इंपॉर्टेंट हैं डायरेक्ट सेलिंग रूल को समझना और इसके बारे में रूट लेवल तक बात करना? सर रूल्स, हाँ जी, रूल्स हमारे लिए एक गाइडलाइन है सर। कानून बन जाए और सब लोग शरीफ हो जाएं, ये हो ही नहीं सकता। सड़क पे देख लीजिए, रूल्स बने नहीं है क्या, मुर्गी की तरह इधर उधर भागते हैं लोग। रूल्स का पालन करना एक कल्चर होता है, अपना अंदर एक चरित्र होता है। आज हमने इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले वंदना की, आशीर्वाद लिया। कौन देख रहा है? जिससे आशीर्वाद लिया वो है कहाँ? लेकिन ये हमारा चरित्र है। हम उसी डिसिप्लिन में रहते हैं, चाहे परिवार से शुरू होता है, देश और इंटरनेशनल ये होता है। जब कभी कोई ऐसे इससे दाएं बाएं होता है तो आज की हिली हुई सारी व्यवस्थाएं हिल चुकी हैं किसी एक व्यक्ति की वजह से, तो ये होता है। ये रूल्स हमारे लिए एक आदर्श का काम करते हैं कि ये हमारा है, और उसको वो अगर नहीं हो तो हमारे पास कोई फोकल पॉइंट नहीं है। जैसे है ना, आप घर में बच्चे को अगर थोड़ा सा दूध नहीं पी रहा, वो पी ले नहीं तो पुलिस वाला आ जाएगा, वो बच्चा पी लेता है। ये उसका काम कर रहे हैं और ये होना चाहिए, और इसका पालन करवाना सरकार का काम नहीं है, वो हम लोगों का काम है, अपना चरित्र बनाने का काम है सर। दैट्स ग्रेट। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा गुप्ता सर ने जो बोला। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का पीडीएफ आप गूगल में डालिए, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वो आपके पास हमेशा आपके बैग में रहना चाहिए। मेरे बैग में और कुछ हो ना हो, हमेशा मैं कहीं भी जाऊं, एक होम मीटिंग में भी जाऊंगा तो मेरे पास हमेशा डायरेक्ट सेलिंग रूल्स की पीडीएफ हमेशा रहती है। और चैट विद सुरेंद्र वत्स में जब भी हम बातचीत करते हैं, मैं गुप्ता जी कैसे न कैसे घुमा फिरा के डायरेक्ट सेलिंग रूल पे आ जाता हूं। और मुझे लग रहा है कि आज तक हमारे अगर 380 एपिसोड हुए होंगे तो उसमें से 100 एपिसोड में तो हमने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के बारे में बातचीत की होगी।
और 100 से ज्यादा एपिसोड में हमने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी डाला है कि भी दीज आर द डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। आप इसको, आपको नहीं मिल रहा ना गूगल पे, तो यहां से आप इसको लिंक पे जाइए और आप डाउनलोड कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं मैं बात करना चाहता हूं, और अपॉर्चुनिटी है तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए मैं सबको शेयर करना चाहता हूं। अगर आप कंपनी ओनर हैं तो मेक श्योर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में जो कंप्लायंसेस हैं वो आपकी कंपनी फॉलो करे। पॉइंट नंबर 4 में कोई 10 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, और पॉइंट नंबर 5 में एक डॉक्यूमेंट है कि आपकी कंपनी ने एक एफिडेविट देना है जो बोलेगी कि वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को कंप्लाई करती है और मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो एक एफिडेविट देना और बाकी डॉक्यूमेंट्स देना। तो मेक श्योर कि आपकी कंपनी ने वेबसाइट पे वो कंप्लायंसेस डाले हुए हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग लीडर हैं या डायरेक्ट सेलर हैं तो ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, चेक करें कि कंपनी ने डाले या नहीं डाले हैं। हो सकता है उनको अभी उस प्रकार की जानकारी नहीं हो, तो आप अप्रोच करें, आप मेल करें कंपनी में कि सर सभी कंपनी और जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं हमारे देश की, अगर बड़ी 5 कंपनियों की बातचीत करें, वो 5 बड़ी कंपनियां इसलिए हैं क्योंकि वो कंप्लायंस को फॉलो करती हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, देखिए, उन्होंने विधिवत रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपकी भी कंपनी बड़ी बनना चाहती है तो फिर बड़ी कंपनियों को कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा। सो आप जरूर फॉलो कीजिए। और चैट विद सुरेंद्र वत्स पे अगर ये एपिसोड आता है तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम हिंदी इंग्लिश का डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का पीडीएफ हम लोग डालेंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं गुप्ता सर? सर इसमें कि रूल्स जो है वो सब कोई पढ़ता नहीं है जी। कुछ लोग पढ़कर समझ जाते हैं, कुछ को पढ़ाना पड़ता है। स्टूडेंट दोनों तरीके के होते हैं, ये व्यवहारिक है, व्यवहारिकता है। और सवाल यहाँ पर ये आता है कि इस रूल्स की कॉपी हर किसी के बैग में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि नालायकों के बस्ते ही भारी होते हैं। उनको किसी तरीके से हम पढ़ा दें। मुझे नालायक तो नहीं कर रहे? नहीं सर, गुरु के भी बस्ते भारी होने चाहिए। तो सर ये अपना फिर वही मैं बात कर रहा हूं कि इट इज अवर ओन कैरेक्टर जो कि नीचे तक परकोलेट करता है। एवरीथिंग परकोलेट्स फ्रॉम द टॉप। 2014 से भी हमारा एक नेशनल कैरेक्टर था, 2014 के बाद भी एक नेशनल कैरेक्टर है। एवरीथिंग ट्रिकल्स फ्रॉम टॉप। सो जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही आती है। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। हमने एथिक्स की बातचीत की, हमने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स और कंप्लायंस की बातचीत की। तीसरा विषय है लीडरशिप। कोई भी उद्योग है वो लीडरशिप से चलता है, हम सब लोग जानते हैं, और हमारा तो काम ही लोगों से मिलना है, तो इसलिए लीडरशिप क्वालिटी बेहद जरूरी है। उसके बिना चीजें आगे नहीं चलती हैं। लीडर्स ही, किसी इंडस्ट्री के लीडर्स ही उसकी रेपुटेशन बनाते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने में बड़ा योगदान देते हैं। तो लीडरशिप की हम बातचीत करते हैं और हम शुरुआत करते हैं फिर विपुल जी से। विपुल जी, आपके अनुसार एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर में 2 प्रमुख गुण क्या होने चाहिए? 2 ही बताइएगा, जो आपके अनुसार बहुत सारे हो सकते हैं, बट कौन से 2 आपकी नजर में है कि यार नंबर 1 ये होना चाहिए और नंबर 2 ये होना चाहिए? पहले तो सर जहाँ तक लीडरशिप की डेफिनेशन शॉर्ट में बोल दूँ तो कि ब्लेजर और टाई पहनने से लीडर नहीं बनते हम। उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है। लीडर वो होता है कि वो नीचे लीडर क्रिएट करता है, ना कि फॉलोअर क्रिएट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर लोग इसको हम एक पॉइंट माने, पॉइंट नंबर 1 हो गया कि लीडर क्रिएट करता है। दैट्स ग्रेट। और लीडर वो होता है, वो हमेशा खुद का ना सोचते हुए डाउनलाइन का पहला सोचता है। दैट्स ग्रेट। तो दूसरी क्वालिटी होगी वो अपने से ज्यादा अपनी टीम के बारे में सोचे। वंडरफुल। एंटन सर के पास में चलते हैं। एंटन सर, आप जब देखते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लीडर को, तो क्या क्वालिटीज आप देखते हैं कि यार ये 2 चीजें इसके अंदर में है तो इट मींस ये लॉन्ग टर्म काम करेगा? सो मोरओवर मैं मैनेजमेंट की तरफ से ज्यादा हूं, तो व्हाट आई सी इज कि लीडर हैज टू बी लेड बाय हिज एग्जांपल। वो उसके एग्जांपल से ही पहचान जाता कि व्यक्ति क्या है। तो एग्जांपल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, कमिटमेंट हैज टू बी देयर, क्योंकि लीडरशिप इज नॉट कि मेरा बहुत बड़ा टीम होने से मैं बहुत बड़ा लीडर हो जाऊं। इट्स नॉट, लीडरशिप इज नॉट जस्ट known by the size of the team, it is actually by the quality of people you develop.
So तुम जिस तरीके से leaders, as sir said, कि leaders has to create a leader, it has to be the quality of people that you create and develop shows your leadership. So That's leadership needs to have this quality. वंडरफुल, Thank you. वंडरफुल सर, दैट्स ग्रेट। कदम सर, आपके अनुसार दो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? आपने भी बहुत बड़ी टीमें बनाई हैं, बहुत सारे लोगों को आते जाते देखा होगा। सर मेरे हिसाब से एक लीडर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के बोलते ना हम लोग की लाइक शूज वेयर करके देखना चाहिए, क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो कैसे बनाने मेरे ऊपर है। यदि मेरा थिंकिंग ही मुर्गी जैसा है तो मुर्गी जैसे बनेगी, यदि मेरा ईगल का थिंकिंग है तो ईगल बनेगा। दैट मीन्स डुप्लीकेशन 10% होता है, नेगेटिव डुप्लीकेशन 90% होता है। इतने अच्छे काम करो ना कि आपके अंदर एक भी ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए लीडर का। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। यू शुड बी 100% प्योर। यदि दिल से प्योर है, लोगों में प्योर है और एक अच्छा आइडेंटिटी ब्रांड बनाओगे आप, ये ब्रांड बनाने का बिजनेस है। दिस इज अ करियर ओरिएंटेड बिजनेस। वो जमाना गया जब करियर ओरिएंटेड बिजनेस नहीं था। आज ये सोचना है कि मेरी इंडस्ट्री, जब मैं एज ए नेटवर्कर काम कर रहा हूं, मैं आई एम ए डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने कंपनी को मैं खुद का कंपनी समझता हूँ। इट इज माई कंपनी, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी दी है, मेरे बच्चों का करियर दिया हुआ है, उनका फ्यूचर यहाँ पे होगा। तो ये मुझे सोचना है, और मेरा जितना बच्चा मुझे इंपॉर्टेंट है उतना मेरा हर एक लीडर इंपॉर्टेंट है। आई सी फ्रॉम दैट एंगल। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। कदम सर जैसे बोल रहे हैं, मैं इसको इस रूप में मानता हूं कि इंडस्ट्री में हम लोग एक मास्टर कॉपी की भूमिका में रहते हैं। जैसे एक जेरोक्स मशीन है, उसमें अगर मास्टर कॉपी अच्छी नहीं है तो फोटो कॉपी अच्छी आ ही नहीं सकती। अगर मास्टर कॉपी अच्छी है फिर मशीन काम करेगी, सिस्टम काम करेगा, फिर वैसी ही कॉपियां तैयार होंगी। तो कदम सर का बड़ा अनुभव है, वो यही कह रहे हैं कि अगर आप खुद अच्छे हैं, जितने अच्छे आप होते जाएंगे उतनी अच्छी आपकी टीम ऑटोमेटिकली होती जाएगी, बिकॉज यू आर द मास्टर कॉपी। और सर एक छोटा सा और एक पॉइंट इसको ऐड करना चाहूंगा मैं, बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ लीडर। वन इज अचीवर, वन इज अ लीडर। अचीवर एक होता है कि भाई शॉर्ट टर्म में कुछ भी गलत काम करके धंधा लाया, आई गॉट द रैंक, आई गॉट द इनकम। उसमें मैंने ये नहीं देखा कि लोगों के प्रोडक्ट चले नहीं चले, सर्विसेज मिली नहीं मिली, बिकॉज माई इंटेंशन इज टू अर्न द मनी। मेरा हो गया, आई बिकम अचीवर। बट रियल लीडर होना चाहिए जो इज टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। दैट्स ग्रेट। तो अचीवर नहीं बनना है, लीडर बनना है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू। हम लोग लास्ट में कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। संजय सर, इंडस्ट्री की छवि को और प्रतिष्ठा को बेहतर बनाने में लीडर्स और डायरेक्ट सेलर्स स्पेशली क्या भूमिका निभा सकते हैं, क्या करना चाहिए? बस एक ही काम करना है, जो नीचे लोग आ रहे हैं उनको एम्पावर करना है। एम्पावर करना है मतलब उनका माइंडसेट पे काम करना है, लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेन करें इसके बारे में उनकी मतलब सोच और समझ को डेवलप करना है। यदि ये कर पाएंगे ना तो लॉन्ग टर्म काम हो पाएगा। इस डायरेक्ट सेलिंग को मैं दूसरा बिजनेस भी कहता हूँ, टीम बिल्डिंग बिजनेस। इसका दूसरा नाम मैं जो बोलता हूँ लोगों को बताता हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में एक ही काम करना पड़ता है कि जो लोग आपके साथ में आ रहे हैं उनको एम्पावर करना है, एक राइट डुप्लीकेशन के साथ में अपनी टीम को तैयार करना है। आपको अपने जैसे डुप्लीकेट्स तैयार करना है। तो आप कैसे होने चाहिए उस पर, उसी पर पूरा का पूरा दारोमदार टिका हुआ है। आपकी टीम टिकी हुई है और आपका फ्यूचर जो टिका हुआ है वो उसी पर टिका हुआ है। तो आप दमदार बनिए, आप अच्छे लीडर बनिए, आप अपने नीचे अच्छे लीडर्स को तैयार करिए। यही एक तरीका हो सकता है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ लेने की। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन और लास्ट बार हम सबके पास माइक आ रहा है सर, वो ये, हमने रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनाने के लिए 3 चीज़ों पे बातचीत की, एथिक्स पे बातचीत की, कॉम्प्लायंसेस पे बातचीत की और लीडरशिप पे बातचीत की। आपके अनुसार एक चीज जो लगता है कि नहीं ये तो नॉन नेगोशिएबल है, इससे समझौता नहीं होना चाहिए, सबसे पहले इस पे काम होना चाहिए, क्या है गुप्ता सर? नॉन नेगोशिएबल, यार बाकी चीजें ठीक हैं लेकिन सबसे पहले इस पे काम बहुत जरूरी है। परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी, दैट्स ग्रेट। यस सर, विपुल जी। मुझे लग रहा है सर डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। डुप्लीकेशन पे काम होना चाहिए, दैट्स गुड। एक चीज ही बतानी है, एंडन सर। I say education and awareness. वाओ, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। यस सर। I feel, sir, customer satisfaction and development of the people is very important. दैट्स ग्रेट। From all the ways. पीपल फर्स्ट, प्रॉफिट नेक्स्ट। वाओ, पीपल फर्स्ट, प्रॉफिट नेक्स्ट। मैं अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर देता हूं। मेरे अनुसार
छवि को बनाने के लिए और प्रतिष्ठा को बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस रेट को बढ़ाने की, और वो तभी बढ़ेगा जब हम स्किल्स के ऊपर में काम करेंगे, एजुकेशन को फोकस करेंगे। मोटिवेशन और एजुकेशन जब हमारा फोकस रहेगा तब चीज़ें कहीं ना कहीं काम करना स्टार्ट करेंगी। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट, Thank you, sir. सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज हमने एक बहुत अच्छा पैनल डिस्कशन किया, लेकिन ये जिम्मेवारी केवल मात्र कंपनियों की नहीं है, रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनाने की केवल मात्र बड़े लीडर्स की नहीं है, अपितु ये जिम्मेवारी हम सब की है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करें, इतनी अच्छी जिम्मेवारी और एथिक्स के साथ को कंप्लायंस को पूरा करते हुए काम करें कि जब हम अपनी अगली पीढ़ी को डायरेक्ट सेलिंग संभाल रहे होंगे तब हमारा सीना भी 56 इंच का हो और उनका सीना भी 56 इंच का हो। यस, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सो आइए मिलके एथिक्स को अपनी सोच बना लें, कंप्लायंस को अपनी आदत बना लें और लीडरशिप को जिम्मेवारी में बदल दें, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2047 के विकसित भारत में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, प्लीज।